Assalamu alaikum class, how are you? As you all know that we were discussing our chapter number 6 which is acid, bases and alkalis. In that we were discussing about the properties of acids. The last property we discussed was that when acid reacts with metal carbonates or bicarbonates, it liberates carbon dioxide gas. Like for example, you can see in the point number 6, CaCO3 reacts with HCl and forms CaCl2, H2O and CO2. This CaCO3 is basically the carbonate, this one, all right? And this, the carbon dioxide has been liberated, all right? In case of bicarbonate, this is a sodium bicarbonate. It reacted with acid, which is acetic acid, and liberated a salt, sodium acetate, water, and then carbon dioxide. So whenever carbonates and bicarbonates react with acid, they liberate carbon dioxide gas. Okay, how we got to know that? हमने एक experiment किया. In that we took sodium hydrogen carbonate, like sodium bicarbonate, which is baking powder, and we added acetic acid into it, which was vinegar. ठीक है, हमने baking powder लिया, we added vinegar to it because you all know vinegar is acetic acid in a test tube. उसमें से कुछ गैस लिबरेट हुई, उस गैस को हमने लाइम वाटर के अंदर, दिस वाज लाइम वाटर, ठीक है. लाइम वाटर क्या होता है? CaOH2 का सोल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन. उसमें हमने इस गैस को बबल इन किया. जब हमने इस गैस को बबल इन किया तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सोल्यूशन था वो मिल्की हो गया. सो वी गॉट टू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, तो उसको मिल्की कर देती है. इसलिए अगर वो मिल्की हो जाए सोल्यूशन, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. ऑलराइट. The last property is the neutralization reaction, in which the acid reacts with a base, which is sodium hydroxide, and produces salt and water. जब भी acid और base react करेंगे, they will form salt and water. ठीक है. So ये क्या था? H2SO4 acid था, sodium hydroxide base थी, and it produced a salt, which is sodium sulfate, and it produced water. Now we are going to discuss about the uses of acids. So here we are going to discuss about the uses of mineral acids. First of all, hydrochloric acid. It is used for cleaning the surface of metals. मतलब ये कि हमने कोई रस्ट वगैरह रिमूव करना है अपने किसी मेटल सरफेस से, तो वी कैन यूज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. NaCl की प्योरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. इट इज़ यूज टू मेक एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया इज बेसिकली अ सॉल्वेंट विच कंटेन्स 3 portions of HCl and 1 portion of HNO3, and this solvent is used to dissolve noble metals like gold, platinum, etc. Then it is used to make glucose from starch. Then it is used to make it is used to digest food in our stomach. You all know that we have hydrochloric acid in our stomach. It aids in digestion. Next is nitric acid. Nitric acid, first of all, is used to prepare fertilizers like ammonium nitrate, ammonium sulfate, etc. Then it is used to prepare explosives. It is used to prepare dyes. Dyes means something like paints, colors, plastics, and artificial silk. And the last one, for etching designs on metals like copper, brass, and bronze. इन metals के ऊपर कुछ designs आपने create करने हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं. Then sulfuric acid. Sulfuric acid is known as the king of chemicals. Why? Because it has a wide use in the industry. बहुत सारी चीज़ें बनाने में हमें sulfuric acid help out करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, ये क्या है? King of chemicals. The first one is it is used as a dehydrating agent. Dehydrating नाम से आपको पता चल रहा है something related to water, and de means removal, so it is used in the removal of water. किसी substance से आपने water को remove करना है तो you can use dehydrating agent sulfuric acid. Okay, secondly, it is used in the manufacture of fertilizers like ammonium phosphate, calcium ammonium phosphate, calcium superphosphate, etc. ये सारे fertilizers आपने टीवी में सुने होंगे ना कि ये हम companies prepare करती हैं जब, तो they used to tell you कि अच्छा ये fertilizers हमने बनाए, तो basically they use sulfuric acid in them.
Then it is used to manufacture celluloid plastics, artificial silk, पेंट्स, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। ये सब बनाने में क्या करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। देन इट इज़ यूज टू रिफाइन पेट्रोलियम, पेपर, लेदर इंडस्ट्रीज़। टैनिंग होती है, आपको पता है ना, लेदर इंडस्ट्रीज़ में हम जो लेदर बनाते हैं तो उस प्रोसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं उसकी क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस के लिए और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। एंड द लास्ट वन, इट इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, जो हम बैटरीज जनरेटर्स और कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं, उनके अंदर जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स बिकॉज ऑफ दिस वाइड यूज़। फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो रहा है, फाइबर्स एंड डाइज में, टैनिंग लेदर में। देन इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इन क्लीनिंग मेटल्स, in chemicals and plastics, and then paints and pigments. So it has wide use, therefore it is known as king of chemicals. Last one is acetic acid. It is used in the preparation of pickles and in the manufacture of synthetic fiber. ठीक है, पिकल्स बनाने में, अचार वगैरह डालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड देन यूज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक का वर्ड जहाँ पे आए तो आपने समझ लेना है समथिंग रिलेटेड टू मैन मेड, ठीक है, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि मैन मेड प्लास्टिक्स हैं। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस एंड एल्कलीज। जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, एसिड, बेसिस, एल्कलीज एंड सॉल्ट्स। सो बेस और एल्कली ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें, इंटर कन्वर्टेबल वर्ड्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिस आर बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ एसिड्स। जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज है उससे बिल्कुल क्या होगा, ऑपोजिट बेस के प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। बेसिस बेसिकली react with acid and form salt and water. इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो विच एवर सब्सटेंस रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, बेस है। और अल्कलीज का मतलब होता है, इट इज़ अरेबिक वर्ड कली विच मीन्स एशेस। मतलब ये प्लांट्स के एशेस से लिए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलीज कहते हैं। अब अल्कलीज होती क्या है, बेसिकली वो बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, दे आर नोन एज अल्कलीज। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बेस वाटर में सॉल्यूबल हो, इसलिए हर बेस अल्कली नहीं हो सकती, लेकिन हर अल्कली क्या होती है, बेस होती है। सो ऑल alkalis आर bases but all bases are not alkalis. Why all alkalis are bases? Because alkalis होती ही वो bases हैं जो water में dissolve होती हैं, so basically वो हैं ही bases but water soluble bases. So all alkalis are bases, but all bases are not alkalis because all bases are not water soluble. कुछ ऐसे भी होंगे जो water में insoluble होंगी but है तो वो base but they are not alkali. So this is the difference. इस ऑलराइट, इस जो बेसिस या फिर जो एल्कलीज हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइंस इन वाटर। जिस तरह एसिड H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइंस इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशंस। जो कॉमन बेसिस हैं, दे आर नोन एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, एज यू कैन सी इन द टेबल। फार्मूलाज भी आपको दिए हुए हैं और नाम भी बहुत सारे रिएजेंट्स के दिए हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन, दैट ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय।